नहीं तो इंडिया डिवाइड नहीं होता। एंड आई सेड साथ साथ यदि उन्होंने पाकिस्तान भी बनाया तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रशियन इन्फ्लुएंस को क्या करने के लिए, काउंटर करने के लिए, रशियन इन्फ्लुएंस को क्या करने के लिए, समझ में आ रहा है? आई सेड दैट these concessions were a constant source of what is a bitter conflict from the 1909 to 1947 and finally led to the partition of India and bloodbath that succeeded. British statesmen generally considered reserved seats as a feeling bad or sad in that they encouraged communal extremism. आएगा communal extremism? As Muslim candidate did not have to appeal for Hindu votes and vice versa. Separate, completely there, what is na? Separatist thought. As further power was shifted from the British to Indian politicians, further power was shifted from the British से धीरे धीरे इंडियन पोजीशन में कब आया? 1919 में कुछ दिया गया, फिर 1935 में आफ्टर मुस्लिम्स वर एवर मोर डिटरमिन्ड टू होल्ड ऑन टू एंड इफ पॉसिबल एक्सपेंड रिजर्व सीट्स एंड देयर वेटेज। हमेशा वो सोचते रहे कि वी आर इन द माइनॉरिटी, ब्रिटिशर्स आर डूइंग गुड, तो वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ आवर व्हाट इज ना मेजॉरिटी एंड वेटेज जो भी हो। However, Hindu politicians repeatedly tried to what? Eliminate reserved seats as they consider them to be undemocratic. आप अनडेमोक्रेटिक क्यों नहीं होगा? जो रेशियो में हो उसी रेशियो में बात करो तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। एंड if you are changing the ratio, लेस के लिए मोर एंड मोर के लिए लेस, then it will lead to that is a kind of it. इसके लिए क्या करें? हिंदू always try to what is eliminate this kind of understood reserved seats concept as they consider them to what is undemocratic and to hinder the development of shared Hindu-Muslim Indian national feeling. Yes, और आपस में हिंदू will not what is support Muslim, Muslim will not support Hindu. So ये क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए क्या था? एक it is what great fault. I said that समझ में आ गया? The eliminate reserved seat as they consider them to be undemocratic and to hinder the development of a shared Hindu-Muslim Indian feelings. The reforms gave a shadow than the substance to the people of India. ये reform क्या रहा? It is good for the Indian people or bad for the Indian people? So 1909 becomes what? Shadow for the Indian people, political system and society instead of substance. And failed to satisfy the Indian National Congress and which was demanding for the system of government obtaining self-governing British colonies. और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1915 में 15 में आके ऑलरेडी अगेन यू हैव सीन दैट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट गेट टुगेदर और 19 इसी समय आपने क्या देखा? लखनऊ पैक्ट इज इन अ काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ पैक्ट? It is not what is a Muslim and what is an Indian National Congress unity. It is also a unity of extremists and moderates. Understood? So completely idea हो चुका. Simple से थोड़े थोड़े उन्होंने बढ़ाए, 16 to 60 किया, 50, 30 और एक बार पढ़ जाएंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब फीलिंग आ गई 1909 के रिफॉर्म्स का। अब हम लोग जा रहे हैं किसकी ओर? हम लोग बहुत पागल हो चुके हैं। इंडियंस आर नॉट हैप्पी। अंडरस्टूड इट? नॉट हैप्पी विद दिस व्यू। और इसके बाद आपने देखोगे आई सेड दैट 1900 व्हाट इज एन आई सेड दैट 1912 एंड 1913 आपको वहां पे बाल्कन आई सेड दैट बाल्कन स्टेट्स में प्रॉब्लम हो गया इन द टर्की एंड दैट इज एन स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ व्हाट इज एन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड द 1915 गांधी कैम ना Gandhi already came in the 1905. उस समय गोपाल कृष्ण गोखले गांधी who is the teacher of Gandhi ji. He said that if you want to do something in the Indian polity, it is not like in a South African polity. You have to what? What is in a move throughout India to understand the people of India. Then you do something. तो 1915 में आए थे. Thereafter he become the active politics में कब आए? 17. Understood? So हम लोग कहाँ थे? So 1919 तो 1915 में
17 में आ गए, लखनऊ पैक्ट हो गया 16 में, 17 में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, 1918 में क्या आया? यस, खेड़ा मूवमेंट, एंड देन 1918 में क्या आया? रॉलेक्ट बिल, एंड 1919 में रॉलेक्ट बिल पास्ड एंड बिकम रॉलेक्ट एक्ट. इट बिकम व्हाट? एंड इस समय मुस्लिम वॉज इन द विद द इंडियंस, और ये सारे इंसिडेंट्स के वजह से 1909 वॉज नॉट इफेक्टिव. ये सारे इंसिडेंट्स जो हो रहे थे इसके वजह से दे आर नॉट हैप्पी. रॉलेक्ट एक्ट में क्या था? एनी कैन बी व्हाट इज ना पुट बिहाइंड द जेल without any trial and for 2 years. क्यों? अच्छा चीज है क्या? सब लोगों ने बहुत गुस्सा किया इस बात को लेकर. एंड देन 13 अप्रैल किसके अगेंस्ट ये किया गया. फिर 19 अप्रैल को क्या हुआ? मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर. सब लोगों ने अपने अपने पोस्ट छोड़े, बहुत प्रॉब्लम आया, एंड इसके बाद स्टार्ट किया गया नॉन कॉपरेशन, क्योंकि उन्होंने 1909 का मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी देख लिया एंड इट वाज नॉट हैप्पी विद दिस. उसका भी वैल्यूएशन कर लिया. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं स्टार्ट हुआ, पहले स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट, लेकिन दोनों साथ में चल रहे थे. That the Muslim has started what is an they have a point to what is an at that time in Turkey में caliphate was going to be what is removed, और वहां पे अच्छी चीज हो रही थी, लेकिन मुस्लिम ने क्यों पॉइंट उठाया? दैट इट इज एन लेटर ऑन में इसमें समझेंगे. आई सेड दैट वहां पे कैलिफेट हटाया जा रहा था. मुस्तफा कमाल पाशा हु वाज एन ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, मूवमेंट शुड गो टू द एजुकेशन, और वो वहां पर क्या था? सब कुछ उल्टा सीधा, मतलब उल्टा उल्टा, नॉट सीधा. तो उन्होंने सब कुछ बदला, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हटाया, एंड मुस्तफा कमाल पाशा, एंड बाद में मुस्तफा कमाल पाशा ने ब्रिटिशर्स को हटा दिया. द कैलिफेट हैज बीन रिमूव्ड. लेकिन ब्रिटिशर्स जब ने हटाया तो इनका खिलाफत मूवमेंट था अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ कैलिफेट, दैट द ब्रिटिशर्स शुड नॉट रिमूव इट. ये पॉइंट इन्होंने उठाया था उनके खिलाफ, खिलाफत मूवमेंट. एंड मोहम्मद अली एंड शौकत अली हैज स्टार्टेड इट. हु हैज स्टार्टेड? मोहम्मद अली एंड, और इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस लेटर ऑन ही स्टार्टेड व्हाट? बाद में स्टार्ट हुआ आफ्टर 2 सेशंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एट इट्स हाइट. लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके अगेंस्ट था? 1919 रिफॉर्म्स, जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड, मॉन्टेक वाज एन व्हाट? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, एंड चेम्सफोर्ड वाज द व्हाट इज एन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इन लोगों ने जो दिया इट वाज नॉट सैटिस्फैक्टरी फॉर इंडियन पीपल. तो ये सारी चीजों का स्टार्ट हुआ कौन? व्हाट हैज बीन स्टार्टेड? तो हम लोग देखते हैं 1919 का चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या रहा. मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. I said that Lord Montague, the Secretary of the State, announced the House of the Commons. House of the Commons समझते हैं ना? Lower House, House of the People in India, Lok Sabha. On 17th August 1970, that the goal of constitutional advance in India to be gradual development of civil governing institution with a view to progressive realization of responsible government as an integral part of British Empire. तो ब्रिटिश इंपायर के अंदर में रहते हुए हमें इंडियन पीपल को क्या देना है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डोमिनियन थॉट, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल अंडर द डोमिनियन यस ऑफ व्हाट इज ना ब्रिटिश इंपायर. तो दे आर आल्सो थिंकिंग दैट इज ना कि रियलाइजेशन हम लोग द वे दैट वी हैव टू मेक द व्हाट इज ना रिफॉर्म्स ऑफ आवर अर्लियर सो दैट द इंडियन को क्या मिल सके? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. And it was called a Montague Statement, August Statement, or August Declaration. Do not get confused with August Offer. August Offer was given in the 1940 regard of Second World War में India was included. Indian National Congress बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से उनको बिना इन्फॉर्म किया गया इंक्लूड किया गया था. They have left the what is the name? I said that लेजिस्लेटिव काउंसिल छोड़ दिया था इन्होंने, पार्लियामेंट छोड़कर आगे बैठ गए थे. एंड इसके लिए क्या है? मुस्लिम लीग ने क्या किया था? व्हाट दे हैव डन? डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस हिंदी में बोला जाए तो. मुझे हिंदुस्तान को इनसे क्या मिल गई? डिलीवरेंस डे.
और यहां पर बात किया गया, यहां से लॉर्ड लिथगो हैज, वहां से आई बात बिडेन से कि अब इन लोगों से बात करो भाई, इंडियन की पार्टिसिपेशन चाहिए, नहीं तो इधर से जर्मनी बहुत पावरफुल होते जा रहा है और इधर से चाइना के साथ वो जापान इज गोइंग टू बी बिकम पावरफुल, हम लोग नहीं सस्टेन कर सकते, नहीं तो हमारा बोरिया बिस्तर जाएगा। तो उन्होंने बोला अगस्त ऑफर इन द व्हाट इज इन अ मंथ ऑफ 1940 कि आपको मैं क्या दूंगा, डोमिनियन स्टेटस और बहुत सारी चीज, बाद में वही सब, फिर बाद में कैबिनेट मिशन भी आया था 1942 में, जिसको बोल दिया गया था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रसिंग बैंक। गांधी जी ने बोला था कि भैया तुम कब दोगे, जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तब मुझे बोलोगे ऐसे ऐसे होगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम अगस्त ऑफर, तो अगस्त ऑफर उस समय आया था, तब दैट विल डिस्कस, अंडरस्टूड इट। तो अगस्त डिक्लेरेशन इज डिफरेंट, इट इज गिवन बाय मॉन्टेग, अंडरस्टूड, इट इज फॉर द मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए। I said that the Montague-Chelmsford report in the 1918 had laid down what is a four-fold formula to implement the policy of the first is introduction of complete popular control, an arrangement of administration. Popular control का मतलब होता है an arrangement of administration. को administration कैसे किया जाए अच्छे से, in the local bodies, complete popular control in the local bodies, municipalities, taluks, district boards, etc. पहला। सेकेंड, पार्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द व्हाट, किसमें दिया जाए, जस्ट टेल मी, प्रोविंशियल लेवल पे। व्हाट डज इट मीन, डायरकी। क्या आने जा रहा है 1919 में, ड्यूअल गवर्नमेंट, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू कम। जो अभी मैंने बोला था ना, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारी चीजें, वही चीज यहाँ पे आने वाला है। आई सेड दैट अब विजुअल फॉर्म में आने वाला है, इनको जो हिंदी में बोलूं कुत्तापंथी। तो आई सेड दैट पार्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल लेवल पे क्या दिया गया, पॉपुलर गवर्नमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए पूरा अच्छा से अर्बन लेवल पर, एंड देन पार्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या, reserved subjects and transferred subjects, understood. Non-introduction of responsible government at the center but enlargement of legislative council and more representative of Indians in it. ये तो expected था, है कि नहीं, ये expected है या नहीं। responsible government सेंट्रल लेवल पे कैसे देख सकते हैं भैया, हाँ दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या दिया, ध्यान दे, non-responsible government at the what, central level, but enlargement of legislative council members and then Indian members. ये तो बात करेंगे ही, वर्क करेंगे लोग। And then relaxation of the control of parliament and secretary of the state to the extent of popular government introduced in the provinces. जो अभी हम लोगों ने सेकंड बात किया, तो secretary of the state and who, governor general, viceroy